हेलो एवरीवन, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। बढ़ते आगे वीडियो सीरीज मिरेकल्स ऑफ ग्राफोलॉजी एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अ नेक्स्ट चैप्टर, ट्रांसफॉर्मिंग योर फाइनेंसेस यूजिंग ग्राफोलॉजी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन आवर लाइफ ऑल्सो। आज हम बात करेंगे मनी के बारे में, आज हम बात करेंगे फाइनेंसेस के बारे में। अल्फ़ाबेट वाई। Y is the letter you need to focus on to transform your life graphologically. Y alphabet has the money energy ingrained into it. Y triggers those areas of your brain which are responsible for your wealth. Let's talk about wealth first. Let's understand money first. Let's understand money. Money is just a form of energy. Money is also just a result. Result of what? Result of your actions. Actions happens through your feelings, which comes from your thoughts. Can we control our thoughts? Other methods, not always. But with the graphology, 100% yes. Always behind every financial problem, there is a non-supportive thought process. And that becomes the root cause. Where does this non-supportive thought process come from? The answer is simple. Your own environment. Your parents, your children, your spouse, your colleagues, your friends, TV, YouTube, FB, Reels, etc., etc., etc. Our brain is storing information constantly. Many things nowadays are beyond our control, isn't it? What information our brain is learning and storing, sometimes we are not even aware about it. In this case, there is only one sure shot way as of now that I know, which can help us give the correct direction of our thoughts, and that is graphology. Now we will do exercise number 3. Okay, again we need a blank paper for this. Yes, A4 size blank pages. Now please write few statements and observe the letter Y, capital and small both. Compare the way you write Y alphabet with the following images I am going to explain you with this screen. You will immediately come to know what kind of Y alphabet you are writing subconsciously. Okay? People write Y alphabet differently. Graphologists have more than 15 samples, more than 15 to 18 samples of writing style of Y alphabet. Here we have few examples to explain you. Now you can see in the screen, if you are writing Y in this way, ओके जहाँ पे y लिखते वक्त आपकी वर्टिकल लाइन नीचे आके लूप फॉर्म हो रहा है, ओके, बट दैट लूप और ऊपर का y का जो u जैसा पोर्शन दिख रहा है, यू कैन सी इन ऑब्जर्व इन द स्क्रीन ऑल्सो, वो u जैसा पोर्शन और y का लूप, उसमें अगर गैप दिख रहा है, ओके, उस वर्टिकल लाइन में अगर आपको गैप दिख रहा है, देन ये y हमें बताता है उस पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में. दिस पर्सन कैन बी वेरी नैरो माइंडेड, दे आर वेरी जजमेंटल वाइल चूजिंग पीपल, एंड दिस माइट कीप देम अवे फ्रॉम द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. You can see if your Y is like this, these traits might be definitely there in your personality. Another Y we can observe is, ये Y लिखते वक्त अगर ये लूप मतलब वर्टिकल लाइन नीचे आके जो लूप फॉर्म हो रहा है, वो लूप एकदम स्क्वीज जैसा दिख रहा होगा, that means that person has very suppressed desire which will make them difficult to express, affecting the financial stability also. अगर ये बहुत स्क्वीज जैसे अगर दिख रहा है वो लूप, then financial stability affect हो सकती है. Another Y is, ये Y लिखते वक्त लूप नहीं बना रहे हो,
वाई लिख के नीचे लाइन आके अगर राइट साइड की तरफ जा रही है, देन दीज पीपल आर अटैच टू द फ्यूचर। मतलब ये हर बार इनके दिमाग में फ्यूचर रिलेटेड थॉट्स चल रहे होते हैं। प्रेजेंट में रहना इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। दे आर टोटली डिपेंड ऑन द फ्यूचर, कैन ऑलवेज स्टे इन सेल्फ कंपोज एंड अननेसेसरी स्ट्रेस। जैसे मैंने कहा कि वर्तमान में रहना या फिर प्रेजेंट में रहना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, ओके, एंड समटाइम्स इट इनवाइट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट वाई, ओके, ये जो वाई है, ओके, यहाँ पे वाई अल्फ़ाबेट का वर्टिकल लाइन इज गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके, लेफ्ट में ऐसे छूट जा रहा है। दीज पीपल आर नॉट वेरी गुड मनी सेवर, ओके, उनसे सेविंग ही नहीं हो पाती, ओके। अनदर ट्रेट इन देम इज दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। मतलब इनके काम भी उस टाइम में, जो टारगेट टाइम वो डिसाइड करते हैं, उस टाइम में भी नहीं हो पाते। नाउ दिस नेक्स्ट वाई, दिस इज अ वेरी गुड वाई, यू मस्ट प्रैक्टिस दिस वाई, ओके। इसमें वाई का लूप नीचे आके, ओके, वो लूप ऊपर एक जॉइनिंग पॉइंट आपको दिख रहा है। इफ़ यू कैन सी वेरी डीपली, देयर इज अ जॉइनिंग पॉइंट, ये यू और वो लूप उस एक पॉइंट में से ऊपर आ रहा है। दिस पर्सन कैन सेव वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, वॉट एवर ही इज अर्निंग ही विल बी एबल टू डू सेविंग ऑल्सो। So we all must practice this type of Y. Now next Y alphabet. Okay. If you are writing this type of Y, जिसमें vertical line एकदम काफ़ी लेंथ तक नीचे आ जाती है, okay. These people are very very lonely kind of personalities, and they also facing lot of financial challenges also. बहुत कम friends होते हैं इनके, मोस्टली डॉग लवर्स होते हैं ये लोग, okay? लेकिन सेविंग नहीं कर पाते और बहुत अकेले अकेले रहना इनको पसंद होता है। नेक्स्ट वाई इज, अभी ये वाई अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट वाई जैसे ही है, लेकिन ये लूप लेके थोड़ा सा नीचे बेंड हो रहा है, ओके। ऐसे वाई जो लोग लिखते हैं, दे आर वेरी फियरफुल फॉर सक्सेस। कहीं ना कहीं पे इनमें अंदर वो फियर ऑफ सक्सेस या फिर फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, एंड देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं, या फिर सामने अपॉर्चुनिटी होगी भी तो इनको पता नहीं चलता। अनदर वाई इज सो मेनी वाई अल्फ़ाबेट ट्रेड्स, राइट। अनदर वाई इज कि while writing your loop of Y alphabet is a very bigger, थोड़ा extra bigger, okay. These people are more insecure in their life, very negative about future and very possessive in relationship also. ये जो Y है बहुत सारे relationships भी disturb कर देता है, so we should avoid this type of Y. आजकल ये वाई काफ़ी टीनेजर्स में ऑब्जर्व किया जाता है कि बहुत सारे निगेटिविटी है फ्यूचर के बारे में, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी है, ओके। सो इफ़ योर किड्स आर देयर एज ग्रुप बिटवीन 14 to 19, you can observe if they are writing this kind of Y. And one more Y we will see here is दिस काइंड ऑफ वाई, जहाँ पे आप लूप में एकदम शार्प एजेस देखोगे, ओके। दिस शार्प ट्रायंगल, ये जो नीचे वाई के नीचे जो ये शार्प ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है ना, दिस शार्प ट्रायंगल बिलोंग्स टू फिनेंशियल स्ट्रेस। ये लोग हमेशा पैसे के टेंशन में रहते हैं, एंड दैट ऑल्सो दिस वाई ऑल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस इन रिलेशनशिप ऑल्सो। अभी यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट ये 8-9 स्टाइल के वाई हमने डिस्कस किए हैं, बट देर आर मेनी मोर राइटिंग स्टाइल ऑफ वाई जो हम अपने ग्राफोलॉजी के कोर्स में डिटेल में डिस्कस करते हैं।
Sometimes it may happen that you will find your why suited for making a lot of money, but still you are not making money. Remember, I had told you that every other area of your life is interconnected. So then the answer to your challenge will be in the another alphabet, which might not be supporting you right now. That's why now, since you have begun this journey, completing it is very, very important. And there are two ways to complete this journey. Okay, keep watching these videos. Okay, keep practicing as I'm guiding you. Okay, practice करते रहिएगा. And another thing is, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ओम गुरुकुल का, उस लिंक पे क्लिक करके ओम गुरुकुल का ऐप इंस्टॉल करके keep getting more and more videos about graphology and our courses. Okay, I'm sure you are enjoying and you are liking these videos. शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे आपको आपके हैंडराइटिंग के बारे में पता चल रहा है, वैसे आपके प्रियजनों को भी पता चले, और किसी की ज़िंदगी अगर हम 1% भी अच्छी कर पाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।